not necessary that uh, we cannot find a graph. uh, we cannot find all pairs source all pairs shortest path problems in the given graph if there is a cycle of negative length. So for finding this, the shortest path between each pair of nodes of the graph consisting n vertices, this means it requires n iterations to find a shortest path between each pair of vertices of the directed graph G. Here means after iteration k, cost matrix A gives the length of shortest path that only uses node 1 to end up to k as an intermediate vertex. Suppose we want to find a first iteration, means so this gives a shortest path between all pair of vertices by using 1 as an intermediate node. Similarly, when we find a A2 means the next matrix, means here we use the vertices 1 and 2 as an intermediate vertices. Similarly, when we find a AK is superscript k, means this matrix gives the length of shortest path that only uses the nodes 1 2 and up to k as an intermediate nodes. This means at iteration k, the algorithm must check for each pair of nodes ij whether or not there exists a path from I to j passing through vertex k that is better than the present optimal path through nodes in 1 2 and up to k minus 1. So simply at iteration k we find the better optimal path than its previous step. Its previous steps means when we find a to the power k minus 1, a superscript k minus 1, they which is found by using 1 2 and up to k minus 1 as an intermediate vertex. From this matrix we find a to the power k, this is a subscript k, means this uses 1 2 and up to k as an intermediate vertex. The formula for finding this is, means a to the power k, this is a cost adjacency matrix by using 1 2 and up to k as an intermediate vertex. So every element of this matrix ij, means cost of ij is given in this matrix is equal to mean of ak minus 1 ij comma ak minus 1 ik plus ak minus 1 kj. So simply this is the algorithm. So by using this recursive formula we obtain the cost adjacency matrix AK. So here for finding the all pair source shortest path problem, how many number of steps are required, how many number of iterations are required. The total k iterations, total n number of iterations are required if there are n number of vertices in a given graph of n vertices. So here this is the algorithm. The initially cost adjacency matrix is given, means first we find the cost adjacency and that is denoted as a0. Then simply we find a1, means by using 1 as an intermediate vertex. Then a2 means by using 1 2 as an intermediate vertex. A3 we derive a3 from a2 by using a 1 2 3 as an intermediate vertices, and up to and in the last we derive a, and this means this uses 1 2 and up to n as an intermediate vertices, and this final matrix gives a all pair shortest path, means in a final matrix a to the power n, a superscript n, this consisting all pair shortest path, means there is if there is any means node one node to any other nodes, so there is exists a shortest path between those. Here this is the algorithm for finding a all pair shortest path problem, and this algorithm is named as a Warshall's algorithm for finding a shortest path problem. This algorithm is given by scientist Warshall's, and simply this uses a cost matrix A and n. Cost A n, cost is a n cross n matrix, is a cost adjacency matrix of graph G with n vertices. Cost of shortest path from vertex I to j. Aij is the cost of shortest path from I to j, and cost of ii is equal to 0 for every vertices n. Here simply first what we have to do, first we find a cost adjacency matrix. So this is for I is equal to 1 to n, j is equal to 1 to n, aij is equal to cost of ij,
means copy cost into matrix A. So here cost matrix are copied into matrix A. Then for k is equal to 1 to n, I is equal to 1 to n, j is equal to 1 to n. What we have to do? We have to do this recursive formula aij. So this is simply what aij is equal to what here? Aij is equal to mean of aij. Aij is equal to mean of it. This means this is when a0 is given, means cost matrix is given, to be find aij means a1 from this. To aij is equal to what? Mean of aij comma aik plus akj. Then first for loop and second for loop and third for. So simply use this recursive formula for finding. Then finally return the matrix A, which uh, this matrix of shortest path between each pair of this final matrix consisting of shortest path between each pair of vertices of the graph. The algorithm is known as a Floyd-Warshall algorithm, not a Warshall algorithm. This is known as a Floyd-Warshall algorithm. The time complexity is order of n cube. What is the time complexity of this? यहाँ पे देखेंगे इसकी क्या है, n स्क्वायर होगी, और इसकी क्या है, 1 to n चल रहा है, 1 to n चल रहा है, 1 to n चल रहा है. तो this is n into n into n. So this is the time complexity of this algorithm is order of n cube. This is a given graph and find the shortest path between each pair of vertices. We already discussed the same example in a previous class. So let's start. If there is any confusion in this, then please ask. Otherwise, we start a new topic. So we start a new topic. The new topic is what? Heap sort. Heap sort. What is the meaning of heap sort and how we sort the number of element means given list of element by using a heap sort. So first we construct a heap. So showing the procedure of heap sort, first we discuss about what is the meaning of heap. So there are two kinds of heap. First is known as a min heap and max heap. So a max or min heap is a complete binary tree. The next question is what is complete binary tree? So let us discuss. Your in a data structure you already studied about a tree, a full binary tree, complete binary tree. Like here, suppose this is a tree. This is the root. When we discuss this tree, every root is in case of tree, if the root is what is first we discuss what is the means binary tree. Binary tree is a tree that consisting at most two child. At most two child means it consisting either zero child or one child or two child. Simply if this is a root, so it have maximum two childs, and these childs are denoted by this is the left child, this is the right child, and this is known as a root. This is known as a, if there is no child, it is also known as a binary tree. So at most two childs, binary tree have at most two childs, and these childs are denoted as a, are simply क्या होगा, zero child means only root है, तब भी ये binary tree है. If there is one child, this is also binary tree. If there is two childs, this is also binary tree. But if this is, there are three childs, it is not a, this one is not a binary tree. This is not a binary tree. So let us discuss what is the complete binary tree. After discussing binary tree, what is the meaning of complete binary tree and full? There are two concepts: complete binary tree कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो वो बाइनरी ट्री होगी मीन्स एट मोस्ट टू चाइल्ड ही होगा एवरी रूट.
consisting at most 2 child. Then full binary tree, complete binary tree, and full binary tree. So in case of full binary tree, except from the leaf, every node consisting at least 2 child. Oh, sorry, every node consisting 2 child means left child as well as right child. Exception क्या है? Except लीव नोड, दीज आर द लीव. यदि इसमें बात करेंगे तो ये लीव नोड है, 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 ये लीव नोड. तो एवरी नोड, यदि इसकी बात करें हम, दिस इज, इसके पास कितने चाइल्ड हैं? 1 2. इसके पास भी दोनों चाइल्ड हैं. ये इंटरनल, जितने भी इंटरनल नोड हैं, ऑल नोड कंसिस्टिंग 2 चाइल्ड्स एक्सेप्ट फॉर लीव नोड. यहाँ पे देखिए ये लीव नोड है, 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 ये लीव नोड है. ठीक है. तो दिस मीन्स एवरी, अब यहाँ पे देखिए ये भी 2 चाइल्ड है, तो दिस मीन्स दिस वन इज अ फुल बाइनरी ट्री. दिस वन इज अ फुल बाइनरी ट्री, बट दिस इज नॉट अ complete binary tree. Complete. अब इसके यदि ऑर्डरिंग करें तो रूट इज ऑर्डर्ड फ्रॉम 1, इट्स लेफ्ट चाइल्ड इज ऑर्डर्ड फ्रॉम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. अब देखिए इसका ये जो है रूट दोनों अब्सेंट है, क्योंकि व्हेन वी रिप्रेजेंट अ मेमोरी, सॉरी बाइनरी ट्री इन अ मेमोरी, तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? रूट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, इट्स लेफ्ट चाइल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2, राइट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3. सिमिलरली फिर नेक्स्ट जो लेफ्ट होगा, दिस उसका लेफ्ट और राइट होगा, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड 4 5. तो इसके दी मेमो, दिस इज द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन. दिस वन इज द मेमोरी, दीज आर द लोकेशन. जैसे यहाँ पे क्या है? सिंपली दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सपोज 15. दीज आर द मेमोरी लोकेशन. अब इस मेमोरी लोकेशन में जो रूट है, सपोज दिस इज द रूट, तो ये 1 यहाँ पे रहेगा. ठीक है, दिस इज द रूट. या आप सिंपली जो है इसको 1 2 3 से लेबलिंग, यहाँ मैंने 0 से स्टार्ट किया है, आप 1 से लेबलिंग स्टार्ट कर सकते हैं. Because in case of C language or C++ language, indexing start from 0. That's why here we start at 0. Simply in case of data structure, you start labeling from indexing from 1. तो ये आप 1 से करेंगे, 1 से भी कर सकते हैं. यहाँ मैंने 0 से कर दिया. Suppose this root is named as A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. ठीक है, PQ. तो अब इसका यदि आपको सिर्फ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हाउ वी रिप्रेजेंट इट थ्रू अ मेमोरी? सिंपली हियर सी, दिस इज लोकेशन. सपोज इंडेक्सिंग 1 से हम स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड सो ऑन. तो हाउ बी रिप्रेजेंट, देखिए अब जो आपको फर्स्ट में होगा वो रूट होगा ए बी सी. देखिए कहां तक आपका कोई गैप नहीं है, एम एन के एल एम एन ओ तक. तो सिंपली ये जो लोकेशन है 15 लोकेशंस, ऑल आर फिल्ड बाय, यहाँ पे लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ. 15 लोकेशन तक आपके ये रहेंगे. नेक्स्ट लोकेशन में देखिए क्या आएगा. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लोकेशन 15 के बाद जो 16 होगी वो लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इसके लेफ्ट चाइल्ड की होगी, बट देयर इज नो लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड ऑफ दिस. तो ये दो लोकेशन 16 और 17 आपकी एम्प्टी होंगी. 16 और 17 मींस देयर इज नो चाइल्ड ऑफ दिस रूट. फिर 18 यहाँ पे P और Q आ जाएगा. 18 19 में P एंड Q, और फिर रेस्ट ऑफ देम आर एम्प्टी. तो दिस मींस दिस इज द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन बाइनरी ट्री. तो ऑर्डर यदि हम देखेंगे तो हमें जो एलिमेंट्स हैं दैट आर नॉट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस में यदि हमें नहीं मिल रहे हैं. देखिए 15 के बाद क्या है, सीक्वेंस गैप हो रहा है. 16 17 में नन ऑफ देम आर फाइंड. देन 18 और 19 में P है. तो जो इसका लेबलिंग हो रहा है, तो 1 2 3, ये इसका जो लेबलिंग है वो 1 to 15 जा रहा है.
बट इसके बाद क्या है 1 to 15 हम कह सकते हैं 1 to 15, देन 16 17 नहीं है 17 है और 16 17 18 और 19. So this means there is gap. There is to label the notes are not in a proper order. अब यहाँ पे इसकी बात देखें हम ये just consider this tree. Suppose this is A B C D E F G H I J K L M N O P Q R. अब यहाँ पे देखिए when we put all दो तो this means यहाँ पे क्या है O तक तो 15 है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है इसका देखिए लेफ्ट चाइल्ड है राइट चाइल्ड है पी क्यू, तो ये 16 17 और 18 तीनों फील्ड सारे फील्ड हैं 16, तो यहाँ पे क्या होगा 1 to 15 16 17 18, तो कोई भी सीक्वेंस में देयर इज नो गैप. व्हेन वी स्टार्ट सीक्वेंस labeling of node from 1, then there is no gap is found. ठीक है, सिंपली 1 से 18 तक है आपके नोड, 1 से 3 तक है, इसमें किसी भी ऑर्डर का मिसिंग नहीं हो रहा है. तो दिस मीन्स दिस वन इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी. दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. सिंपली दिस व्हाट इज दिस? दिस मीन्स दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. अब ये क्या है? दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी. क्यों यहाँ पे कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है? क्योंकि जो इसका इंडेक्सिंग है नोड की दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, तो देयर इज सम गैप, मींस इंडेक्सिंग इज नॉट फाउंड इन प्रॉपर ऑर्डर. इसमें क्या है? सिंपली इंडेक्सिंग इज फाउंड इन प्रॉपर सीक्वेंस. व्हेन इंडेक्सिंग इज फाउंड इन प्रॉपर सीक्वेंस, तो दिस मींस दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. सिंपली द व्हाट इज द हीप? सिंपली हीप क्या है? हीप is two kinds, either max heap or min heap. This is a complete binary tree with the property that value at each node is at least as large, or in case of min heap as small, the value of its children. तो क्या है? सिंपली जो आपके रूट नोड की वैल्यू होगी दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसके चाइल्ड से. ठीक है. इन केस ऑफ मिन हीप में क्या होगी? जो रूट की वैल्यू होगी दैट इज स्मॉल एज इट्स चिल्ड्रन नोड. कॉल दिस प्रॉपर्टी इज हीप प्रॉपर्टी. तो यदि ऐसा है ट्री में कि सारे नोड, इफ ऑल द नोड्स फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ हीप, देन वी कैन शो दैट दिस इज अ हीप बाइनरी ट्री, or this is simply known as a heap. Heap means a complete binary tree that follow the property of binary tree. So let us discuss what is the meaning of how we can say that. Suppose the these elements are inserted into the heap like 12 15 6 6 10, this is 22, then 11, then 88 78, then 9, then 55, then 45, then 90, then 4. ठीक है. These are the elements that are inserted into heap. The heap is a complete. Suppose we start preparing a heap or making a heap from start node, means that nodes are inserted into heap in an order. यदि सिंपली आपको कंप्लीट ये बनाना है, हीप बनाना है, तो क्या करेंगे? First we make a complete binary tree which follow the property of heap. What is the property of heap? Heap property is, this is max heap के केस में, this is a complete binary tree with the property that value at each node is at least as large the value of its children. इन केस ऑफ मैक्स हीप में क्या होगा? जो नोड की वैल्यू है वो अपने चाइल्ड नोड से लार्जेस्ट होगी. इन केस ऑफ मिन हीप, जो रूट की वैल्यू है या नोड की वैल्यू है दैट इज स्मॉल एज द वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन नोड. तो सिंपली हियर दिस वी फॉर्म अ हीप. तो सिंपली फर्स्ट भी इंसर्ट, देखिए यहाँ पे क्या इंसर्ट करेंगे? दिस इज फर्स्ट भी इंसर्ट 12 इज टेकन एज ए रूट. अब देखिए जो भी नेक्स्ट आएगा वो उसके लेफ्ट में जाएगा. नेक्स्ट इज 15 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा? 15. दिस नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ मैक्स हीप. मैक्स हीप में द वैल्यू ऑफ ईच नोड इज एज लार्ज एज इट्स चिल्ड्रन.
तो यहाँ पे ये इसका चाइल्ड नोड है, तो दिस मीन्स ये दोनों को हम एक्सचेंज करेंगे। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 15 यहाँ आएगा और 12 यहाँ पे आ जाएगा। 15 यहाँ आ गया, 12 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट देखिए बी इंसर्ट 6। अब 6 कहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ इंसर्ट होगा, क्योंकि ये प्रॉपर सीक्वेंस में ही इंसर्ट होगा। इसका पहले लेफ्ट चाइल्ड आएगा देन राइट चाइल्ड आएगा। दिस फॉलो द प्रॉपर्टी बिकॉज दिस इज ए चाइल्ड नोड एंड इट्स रूट नोड हैव अ ग्रेटर वैल्यू। दोनों से लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड से इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर होना चाहिए, फॉलो कर रहा है। दिस मींस दिस इज अ हीप। अब नेक्स्ट को हमें इंसर्ट करना है 10। तो 10 क्या होगा, इसके लेफ्ट में जाएगा। अब हमें चेक करना है कि क्या ये फॉलो कर रहा है प्रॉपर्टी। यस, 10 इज लेस देन 12, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सचेंज। फिर नेक्स्ट आया 22। अब 22 को देखिए क्या करेंगे, 22 यहाँ पे जाएगा। अगेन देयर इज ए प्रॉब्लम, मीन्स as per the property of heap, it is a complete binary tree with every node consisting the value which is larger than the value of its child. तो अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू, दिस इज अ चाइल्ड बट इट्स वैल्यू इज ग्रेटर। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले एक्सचेंज करेंगे इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 22 इससे 12 से रिप्लेस होगा, तो 12 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 12 यहाँ आ जाएगा, 22 यहाँ आएगा। फिर नेक्स्ट फिर कंपेयर करेंगे इससे, इसके रूट से, तो 22 इज आल्सो ग्रेटर देन 15, तो फिर 15 यहाँ आ जाएगा, 12 और 22 यहाँ पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए इससे कंपेयर करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ 15 रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा 22, ये इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 12 और ये क्या है 16 है। अगेन दिस नॉट फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ हीप, क्यों, क्योंकि इसका जो चाइल्ड है दैट इज 22 विच इज ग्रेटर देन द रूट नोड। तो दिस मीन्स अगेन बी एक्सचेंज। इसमें हमने क्या किया, इन दोनों को एक्सचेंज किया, इसमें हम इसको और इसको एक्सचेंज कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 22, नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा 15, नेक्स्ट अब 15 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर यहाँ आपका 10 है और ये 12 है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट आएगा इसको हमने हीप के फॉर्म में मेंटेन कर दिया। नेक्स्ट जो आपका आएगा दैट इज 11। अब 11 कहाँ पे इंसर्ट होगा, दैट इज लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 6। अगेन प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, property of heap is destroyed means this is less than this, be exchange both, exchange कर दीजिए। तो नेक्स्ट एक स्टेप में क्या आ जाएगा 22, यहाँ 15, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, इसमें इसके लेफ्ट चाइल्ड में चला जाएगा 6 और इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है 10 और 12, 10 और 12। नेक्स्ट अब कहाँ आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट है आफ्टर 11 88। अब 88 कहाँ पे आएगा, इसके राइट में जाएगा, ठीक है। 88 इसके राइट में जाएगा। तो देखिए 88 इज ग्रेटर देन इट्स रूट, तो दिस मीन्स बी एक्सचेंज, फर्स्ट इससे एक्सचेंज करेंगे, फिर अगेन चेक करेंगे कि यहाँ 88 कहाँ पे पहुंच जाएगा, 88 यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ 88 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 11 हो गया। Then again we see that 88 is greater than 22. There what happens? We exchange both. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 88 और 22 को एक्सचेंज कर देंगे, तो 88 are here. In the next step, what happens? This is 88. फिर यहाँ क्या पहुंच जाएगा, इसके लेफ्ट में 15 ही रहेगा, इसके राइट में यहाँ क्या हो जाएगा 22, देन इसके 22 हो गया। नेक्स्ट इज यहाँ 6 है, यहाँ 11 है, ओके। नेक्स्ट 15 के लेफ्ट में 10 है, राइट में 12 है। अब देखिए दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ऑर्डरिंग यदि करें तो 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट अब देखिए कौन सा एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है। नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज इंसर्टेड इज व्हाट, नेक्स्ट क्या कौन सा एलिमेंट है 88 78। अब यहाँ पे 78 कहाँ जाएगा, 78 इसके लेफ्ट में जाएगा, 78 यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम 78, नेक्स्ट लेफ्ट में होगा बिकॉज एवरी चाइल्ड
have at most 2 children in case of binary tree. So heap is also a binary tree, but it is a complete binary tree with certain property. अब ये देखिए 78 इज ग्रेटर देन 10, तो फर्स्ट क्या होगा देखिए 78 इससे एक्सचेंज करेगा तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, 78 यहाँ पहुंच गया। फिर अगेन दिस वैल्यू इज ग्रेटर, तो ये 78 किससे एक्सचेंज करेंगे, इसके यहाँ 15 से, तो यहाँ 15 देखिए आ गया और यहाँ पे 78 पहुंच जाएगा। देखिए देन फॉलो द प्रॉपर्टी बिकॉज 88 इज ग्रेटर देन 78, दिस फॉलो द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सिस्टम में क्या हो जाएगा 88, यहाँ पे इसके लेफ्ट में आ जाएगा 78, इसके राइट में है 22, फिर इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 15, इसके राइट में 12, इसके लेफ्ट में 10 आ गया, और यहाँ पे इसके लेफ्ट और राइट में क्या है 6 और 11 है। आप देख सकते हैं कि एवरी नोड फॉलो द प्रॉपर्टी, यहाँ पे इसके किसी भी लेफ्ट या राइट सब ट्री में कोई एलिमेंट इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, नहीं है इसके लेफ्ट में भी नहीं है राइट भी नहीं। अगेन इसमें चेक कर सकते हैं 78 इसके लेफ्ट और राइट में कोई इससे ग्रेटर नहीं है, इसमें भी नहीं है लेफ्ट राइट में कोई ग्रेटर। फिर हम 15 में आएंगे, इसके लेफ्ट में है ओनली, कोई ग्रेटर नहीं है, राइट में कोई ग्रेटर नहीं। दिस मींस दिस इज द नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्टेड इज 55। अब 55 कहाँ पे इंसर्ट होगा देखिए 55 इज इंसर्टेड हियर। तो व्हेन दिस डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ हीप, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया व्हेन वी इंसर्ट 55 दिस नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ हीप बिकॉज दिस वन इज ग्रेटर, दिस वन हैव ग्रेटर वैल्यू देन इट्स रूट नोट 15 which have a value 15। क्या करेंगे इसको एक्सचेंज कर दीजिए, देन इसको कंपेयर करिए, एक्सचेंज करेंगे तो 55 यहाँ आ जाएगा और 15 यहाँ पे आ जाएगा। 55 इज कंपेयर्ड फ्रॉम इट्स रूट 50 बाई 70, फॉलो द प्रॉपर्टी। तो कोई चीज अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट 88 78 22, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका दिस इज 55, इसके राइट में 12 ही रहेगा, फिर इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे 15, फिर इसके लेफ्ट और राइट में क्या है 6 11। तो इन केस ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री the number of roots at node 0 to की पावर 0, इसमें क्या होंगे 2 की पावर 1 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो दिस मीन्स, तो अब यहाँ पे देखिए अब इसमें अब नेक्स्ट जो रूट आएगा वो क्या होगा, नेक्स्ट है आपका आफ्टर 15 45 90 एंड 4 45। तो देखिए यहाँ पे 45 है, 45 इसके लेफ्ट में जाएगा, अगेन डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ हीप। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, अगेन दिस डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी, तो इसको इससे एक्सचेंज होगा, 12 यहाँ आ जाएगा 45 यहाँ आ जाएगा, देन कंपेयर 45 फ्रॉम 78, दिस फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ हीप बिकॉज 78 इज ग्रेटर। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा 88 78 22 55 12 6 11, नेक्स्ट 10 15, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 12 की जगह यहाँ 45 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, इसके लेफ्ट में आ जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, इसके लेफ्ट में 12 आ गया, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 90 90 इसके राइट में इंसर्ट होगा, 90 इसके राइट में इंसर्ट होगा 90, अगेन दिस डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ हीप। तो अब देखिए 90 को किससे कंपेयर करेंगे, पहले इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा और यहाँ पे 90 चला जाएगा। कंपेयर 90 दिस रूट नोट वैल्यू फ्रॉम दिस नोट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 90 इज ग्रेटर, तो फिर से इसको एक्सचेंज करेंगे दोनों को, तो यहाँ आ जाएगा 78 और यहाँ आ जाएगा 90, फिर इन दोनों को 90 को 80 से कंपेयर करेंगे 88 से, दिस इज अगेन डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ हीप, वी एक्सचेंज बोथ वैल्यूज, तो यहाँ आ जाएगा 78 की जगह 88 और यहाँ आ जाएगा ये 90 था यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 90 की जगह 88 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90। तो वी मेक अ हीप, दिस मीन्स अभी क्या हो गया, दिस इज
रूट में आपका क्या हो जाएगा 90, इसके लेफ्ट में हो जाएगा 88, इसके राइट में हो जाएगा 22, इसके लेफ्ट में 88 के लेफ्ट में है 15, 55, इसके राइट में क्या है, इसमें हो जाएगा 78, इसके नेक्स्ट क्या है 6, यहाँ पे 11, देन आफ्टर द 10, 15, देन अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या एक्सचेंज किया, इसको 45 और 90 को एक्सचेंज किया, यहाँ 45 आ गया था, यहाँ 78 हो गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लेफ्ट में तो 12 ही रहेगा, राइट में क्या हो जाएगा 45, देन 90, ओ सॉरी 90 कर 45, ये 6 और 11 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 4, नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 4, नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 4, तो अब 4 कहाँ जाएगा, 4 जो नेक्स्ट नोड है उसके लेफ्ट का होगा, तो इसके लेफ्ट में क्या होगा 4 होगा। दिस डज नॉट डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ हीप बिकॉज 4 इज लेस देन 6, तो दिस इज अ हीप दैट कंसिस्टिंग the elements which is given in the list. Yes, this list of element, this list of element is given and we form a heap with the help of heap property. So this is the final heap and this maintain the property of heap. अब suppose करिए when we insert any element, when we insert, suppose करिए कि suppose we insert a element, we insert element यहाँ पे हम सपोज करिए कि सपोज बी इंसर्ट एलिमेंट 105, वी वांट टू इंसर्ट एलिमेंट आर नोड व्हिच वैल्यू इज 105 इन द हीप। तो जब भी हम इंसर्शन करेंगे तो फर्स्ट इंसर्शन कहाँ करेंगे, nth नोड, यदि दिस रूट कंसिस्टिंग है n-1 नंबर ऑफ नोड्स, तो ये जो सबसे लास्ट नोड में जाएगा, तो सबसे लास्ट नोड मींस 105 इज इंसर्टेड वेयर, यहाँ पे देखिए इसके लेफ्ट में है, राइट में है, लेफ्ट राइट ऑलरेडी फिल्ड है, लेफ्ट राइट इसके लेफ्ट में है बट राइट इज नॉट फिल्ड, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा वो कहाँ पे इंसर्ट होगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट होगा। तो दिस इफ द प्रॉपर्टी ऑफ हीप इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द हीप into the heap, then what happens, we maintain the property of heap by exchanging the number of element through comparison। तो अब देखिए ये 105 जैसे किए तो रूट नोड है लेसर वैल्यू, तो वी एक्सचेंज दिस, फिर से एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे चला जाएगा 105। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर अगेन दिस नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ हीप, वी अगेन एक्सचेंज हियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 105 की जगह 22 और यहाँ पे चला जाएगा 105। अब देखिए अगेन भी दिस नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ हीप, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 और यहाँ पे आ जाएगा 105। तो आफ्टर इंसर्टिंग मींस 105 द प्रॉपर्टी ऑफ रूट इज डिस्ट्रॉयड बट बी एडजस्ट एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ हीप आफ्टर इंसर्टिंग एलिमेंट। तो देखिए हमने इसको तो आप हीप करेंगे तो दिस फॉर्म्स अ हीप, 105 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, दिस इज 90, दिस इज, इसके लेफ्ट में क्या हो जाएगा 22, राइट में 11 ही रहेगा, फिर इसके लेफ्ट में हो जाएगा 4, इसके लेफ्ट में हो जाएगा 6, इसके राइट में हो जाएगा 6 और ये 11 ही है, दिस में नेक्स्ट हो जाएगा ये 55, 78, देन 10, 11, 15, 12, 45। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे तो दिस 2 की पावर 0 1 नोड है, नेक्स्ट लेवल पे 2 की पावर 1 नोड, नेक्स्ट पे 2 की पावर 2 नोड, नेक्स्ट पे यदि फुल 2 वे बाइनरी ट्री होता तो इसमें क्या होते 2 की पावर 4। तो जो लास्ट लेवल है इट इज नॉट नेसेसरी, द नंबर ऑफ नोड इज 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मींस कितना हुआ 8 होना चाहिए, बट इसमें कितना है 2 2 2 6 है, ठीक है, बट दीज आर इन ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि यदि ये एलिमेंट नहीं होता तो दिस नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी
कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद द प्रॉपर्टी ऑफ हीप, कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैक्स हीप। अब सपोज करिए कि हमें लिस्ट को सॉर्ट करना है, बी सॉर्ट बाय यूजिंग द बाय यूजिंग हीप सॉर्ट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक एरे लेंगे दैट कंसिस्टिंग n नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो अब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे देखिए, टोटल 2 की पावर 0 मीन्स 1 + 2 + 4 7 हो गया, और 7 + 6 दैट इज 7 + 6 मीन्स 7 + 6 दैट इज 13। तो टोटल 13 एलिमेंट हैं। सपोज दीज एलिमेंट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब इसको हमने, दिस इज एलिमेंट फर्स्ट इन एरे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। ये लिस्ट, दीज आर द लोकेशंस इन मेमोरी। हमारे इसमें क्या है, ओनली 13 एलिमेंट हैं, तो हम 13 भी लेंगे तब भी चलेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। अब देखिए, जब भी हम फर्स्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमेशा व्हेन वी डिलीट अ फर्स्ट एलिमेंट, तो जब फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करेंगे तो 105 दैट इज इंसर्टेड इनटू द एरे। ये हम एक ब्लैंक एरे लिया, तो इसके लास्ट एलिमेंट मींस nth पोजीशन में यदि an एरे है, ठीक है, an एक हमने एरे लिया दैट कंसिस्टिंग n नंबर ऑफ एलिमेंट, दिस इज एन एम्प्टी एरे। तो जो nth पोजीशन है उसमें हम क्या इंसर्ट करेंगे, फर्स्ट डिलीटेड एलिमेंट जो मैक्स डिलीटेड होगा, रूट इसका डिलीट करेंगे। रूट डिलीट करेंगे तो ये रूट कहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, 13 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 105 आ गया। Then again rest of the roots again maintain the property of heap, again maintain the property of heap। तो अब देखिए जो रेस्ट होगा फिर से हम इसको एडजस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीप। फिर जो मैक्सिमम रूट एलिमेंट होगा वो जो मैक्स एलिमेंट होगा वो रूट में होगा। देन अगेन डिलीट दिस फ्रॉम जो है अगेन डिलीट द सेम द रूट फ्रॉम द हीप एंड पुट इट इन n-1th पोजीशन इन एरे। तो अब देखिए जब नेक्स्ट हम मेंटेन करेंगे तो कैसे करेंगे, अब ये 90 आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इसको डिलीट करेंगे, इस एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो आपका 90 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 90 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अगेन आपका प्रॉपर्टी ऑफ रूट इज, इफ प्रॉपर्टी ऑफ रूट इज डिस्ट्रॉयड देन अगेन मेंटेन द प्रॉपर्टी, एंड इन दिस वे आफ्टर डिलीटिंग one element we again maintain the property of heap. So we discuss these algorithms first. So here this is heap, this is clear. Algorithm of insertion, inserting particular element in an heap, means that is inserted into nth position. Insert an, to insert nth insert nth position item in an array that consisting n number of element. Insert an element in an array which consisting n number of element, or in a tree that consisting n number of element. ठीक है, this means insert an into heap which is stored in a1 minus 1 a1 n minus 1। तो हमें an पोजीशन में एक जो लास्ट है, जो हमारे पास ऑलरेडी n-1 पोजीशंस हैं, ऑलरेडी n-1 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं हीप में, हमें कोई एक एलिमेंट इंसर्ट करना है जिसको हम an पोजीशन में लास्ट में हम इंसर्ट करें इक्वल टू ये n, and item is equal to an, I is equal to n, item is equal to an means an is item is inserted in which location, nth location, last location में आपको। तो this means while I is greater than 1, when while I is greater, देखिए यहाँ I की वैल्यू क्या लिए हैं हम, n लिए हैं। while I is greater than 1 and a of I by ai is equal to ai by 2 कर लेंगे। अब ai में जो पड़ा हुआ था, ai में क्या था, ai में सिंपली क्या था यहाँ पे,
आई की वैल्यू क्या लिखे हैं, एन लिए है, आई में क्या है, आइटम है, तो हम ai/2 वहां डाल देंगे और i इज इक्वल टू i/2 कर लेंगे। एंड फाइनली आफ्टर व्हेन दिस लूप इज टर्मिनेटेड देन ai में हम क्या रख देंगे, आइटम रख देंगे। दिस इज द एल्गोरिथम फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू द heap in a proper way. So and then finally return a tree. What is the time complexity? Worst case time complexity, the number of labels, or what is the height of heap. This means what is this? The number of worst case time complexity is order of log n. It requires moving all items of the list to inserting 90. Suppose this is a heap and insert element 90. तो अब देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट थे बिफोर इंसर्टिंग 90. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ 80, 45, 70, 40, 35, 50. तो दिस मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ हीप, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इसके लेफ्ट सब ट्री में कोई भी एलिमेंट इससे लार्जर नहीं है, इसके लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे तो कोई भी एलिमेंट इससे लार्जर नहीं है, तो दिस मींस दिस फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ हीप. इसमें जाएंगे तो इसके लेफ्ट में कोई इसके ये एलिमेंट लार्जर नहीं है, इसमें जाएंगे तो इसके भी चिल्ड्रन कोई भी लार्जर नहीं. बट व्हेन वी इंसर्ट 90, तो देखिए 6 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 7th प्लेस पे हमें आइटम इंसर्ट करना है जिसकी वैल्यू क्या है 90. तो A7 में हम 90 इंसर्ट किए, 90 इंसर्ट किए. देखिए सिंपली व्हाट हैपेंस हियर, हियर इज दिस while i is greater than 1, i की वैल्यू हमने n लिया, n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा इस केस में. एंड ai/2 मींस 7/2, 7/2, तो इसका इंटीजर वैल्यू लेंगे दैट इज 3. लेस देन आइटम है, आइटम की वैल्यू क्या है 90 है, तो यहाँ पे देखिए ai/2 1 2 3, तो 3 पोजीशन में क्या है 70 है, तो ai/2 में क्या है 70 है, 70 90. ठीक है, आइटम जो इंसर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है 90 है. तो यहाँ पे कंडीशन देखिए कि ये जो ai/2 में है 70 है, दिस इज लेस देन आइटम, यस कंडीशन फॉलो. तो क्या करेंगे ai इज इक्वल टू ai/2. अब ai में क्या कर लेंगे, ai की वैल्यू क्या है 7 है, यानी इज इक्वल टू 7 है, तो ai इज इक्वल टू ai/2. ai/2 में क्या वैल्यू है 70 है, तो हम ai में क्या ले गए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 70 आ जाएगी वैल्यू. ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, after that I is equal to i/2, I is equal to i/2 and again the same loop is repeated here. तो i की वैल्यू क्या है, then again I is equal to i/2, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 7/2 that is equal to 3. अब 3 is greater than 1, yes. अब a of i/2 means 3/2 that is 1 आ जाएगा. is less than item, तो a1 में क्या पड़ा हुआ है देखिए 80 is less than item, yes कंडीशन is true. सिंपली क्या करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो ai में क्या रख देंगे ai/2 रख देंगे, a3 में क्या रख देंगे i/2, तो यहाँ चला जाएगा आपका 80. ठीक है, i/2 में क्या था 80 था, तो ये यहाँ पे चला जाएगा 80. नेक्स्ट क्या होगा, i इज इक्वल टू i/2, i इज इक्वल टू i/2, i की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 3 थी, तो i इज इक्वल टू 1 कर लिए आप, i इज इक्वल टू i/2 कर लेंगे आफ्टर पुटिंग दिस, i इज इक्वल टू i/2, तो ये 3 था, 3 को आपने क्या किया 1 में, while i is greater than 1 condition become false. ठीक है, कंडीशन बिकम फॉल्स, लूप इज टर्मिनेटेड. फाइनली हम क्या करेंगे ai में आइटम रख दें, जैसे ही लूप टर्मिनेट करेंगे ai में हम आइटम रख दिए. तो यही चीज यहाँ पे हम ai में क्या किए, सिंपली आइटम रख दिए, रिटर्न ट्री, और उसके बाद जो भी ट्री आएगी दैट इज अ हीप. तो यहाँ पे देखिए यही किए, 90 को हम इससे कंपेयर किए 70 से, ai/2 से. देखिए कंडीशन ट्रू है, मींस i इज ग्रेटर देन 1 है, यस. फिर क्या है a ऑफ i/2 इज लेस देन आइटम है, ai इज इक्वल टू ai/2. तो ai में क्या है, ai इज दिस an, तो ai/2 में क्या था 70, तो यहाँ पे इसको रख देंगे. ठीक है, अभी 90 को यहाँ नहीं रिप्लेस कर रहे हैं हम, 90 को रिप्लेस नहीं, 90 तो लास्ट में ही रिप्लेस हो रहा है. ठीक है, देन हम क्या कर रहे हैं कंपेयर, नेक्स्ट i इज इक्वल टू i/2 कर ले रहे हैं, i इज इक्वल टू y2 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3 हो गया, i की वैल्यू 3 आ जाएगी. अब क्या है नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे ये कंपेयर करना है, सिंपली व्हाट हियर ai इज इक्वल टू, i इज ग्रेटर देन 1 कंडीशन इज ट्रू, i/2 इज लेस देन आइटम. अब यहाँ पे देखिए क्या है i/2 में क्या है, दिस इज i/2 करेंगे, तो जैसे ही i/2 में जाएंगे तो 3/2 दैट इज 80 आ जाएगा, 80 इज ग्रेटर देन लेस देन आइटम, यस कंडीशन इज ट्रू. तो क्या करेंगे हम इसको चेंज कर देंगे, यहाँ i पे ले जाएंगे, i की वैल्यू 3 थी तो 80 को यहाँ ले गए 3 में. देन
i इज इक्वल टू आई बाई टू दैट इज 1। तो कंडीशन नेक्स्ट जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, i इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन बिकम फॉल्स, लूप इज टर्मिनेटेड, ai में क्या रख देंगे, a1 में आइटम रख देंगे एंड फाइनली रिटर्न द ट्री। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आइटम हो गया एंड दिस रिटर्न द ट्री। ठीक है, दिस मीन्स टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द हीप, one first means one at it at the bottom of heap and then compare it with its parent, grandparent, grandparent and so on until it is less than or equal to one of these values। बेस्ट केस, बेस्ट केस क्या होगा, इसका बेस्ट केस क्या होगा, एलिमेंट प्लेस्ड करेक्टली, नो नीड टू रीअरेंजमेंट। यदि हम यहाँ पे यदि ये 90 की जगह सिंपली क्या होता, सपोज करिए ये ट्री है, 90 की जगह ये क्या होता, सपोज करिए दिस इज अ 43, तो दिस मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ एक्सचेंजिंग, आइटम इज करेक्टली प्लेस्ड, दिस वन इज द बेस्ट केस, दिस वन इज द बेस्ट केस। तो क्या होगा, एलिमेंट प्लेस्ड करेक्टली, नो नीड टू रीअरेंज। जहां पे भी हमें रीअरेंजमेंट की नीड होगी मींस when we insert a particular element and the property of heap is destroyed, we rearrange it, this was the worst or average case। तो worst case क्या होगा, number of labels। तो यदि इस ट्री में देखें तो हाउ मेनी नंबर ऑफ लेवल्स, 1 2 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड फॉर एडजस्टिंग और रीअरेंजिंग the tree, that is number of label, that is log of n। in case of binary tree this is log of n base 2, so this is the worst case time complexity। similar is given here, देखिए फर्स्ट i is equal to n is equal to 7 ले लिया, a7 में 90 आ गया, then i is greater than 1 and ai by 2 is less than, तो यहाँ पे देखिए ai by 2, i is greater than 1, कंडीशन फॉल्स है, ai by 2 क्या है, a3 है, दिस इज लेस देन 90 है, आइटम की वैल्यू क्या है 90 है, कंडीशन इज ट्रू। तो सिंपली क्या कर लेंगे हम, a7 इज इक्वल टू ai by 2 कर लिए, दैट इज 70, ai by 2 में क्या है, a3 में 70 है, तो यहाँ a7 में हम 70 रख लिए, i इज इक्वल टू i by 2 कर लेंगे, फिर नेक्स्ट आपका व्हाइल लूप रिपीट करेगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी। अगेन i इज इक्वल टू 3 दैट इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड कंडीशन क्या है, a ऑफ i by 2 इज इक्वल टू, a ऑफ i by 2 क्या होगा, a1 होगा, a1 इज लेस देन आइटम, तो a1 में क्या पड़ा हुआ है, 80 पड़ा हुआ है, आइटम में क्या पड़ा हुआ है, 90 पड़ा है, कंडीशन इज ट्रू। तो फिर से क्या करेंगे हम, यहाँ पे a3 में देखिए ai में क्या रख लेंगे, ai by 2 मीन्स a1 रख लिए, 80 रख लिए, i इज इक्वल टू i by 2 करेंगे। नेक्स्ट केस में जाएंगे, कंडीशन इज फॉल्स, तो a1 में सिंपली क्या प्लेस कर लेंगे, व्हेन कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तो a के i में क्या रख देंगे, आइटम रख देंगे एंड फाइनली रिटर्न द ट्री। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट how we delete and how we sort the number of element, कैसे हम एक एक एलिमेंट को डिलीट करेंगे और कैसे एडजस्ट करेंगे, तो दिस इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। और यदि आप लोग कल फ्री हो तो मैं कल आप लोगों का क्लास ले सकता हूं, क्योंकि सिलेबस अभी है, कम से कम एटलीस्ट 10 क्लास लगेगा टोटल सिलेबस कंप्लीट करने में। यदि आप लोग इस वीक में किसी भी दिन फ्री हो 9 to 10 तो आप लोग बता सकते हैं, मैं उस डे पे आपका क्लास अरेंज कर लूंगा।